3 members are there in the group? Yes, ma'am. To Krishna and Pratyus. Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right. Rohit, press F5. Yes. Can we start, ma'am? Yes. Yes. Good morning to all of you. Hello. I'm audible, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My name is Bittu Kumar and my teammate Krishna Kumar and today the topic of our presentation is all about the habits of successful organization. Keystone habits or the world of wall owning. Which habit matter most? Case study of the Olka. Olka was a huge US company in US. Olka produced aluminum produce. Sorry. Hello. Yes, Bittu, yes. Olka was a huge aluminum producer company in US. They appointed Paul O'Neill as a CEO of the company in 1985. The safety of the worker was the number one priority for the Paul, and stockholder and shareholder was not did not like this approach, and they are not happy. But after 1 year, to see the rocket change in the revenue and profit of the company, and staff engagement towards the organization also. Paul said, "You cannot order the people to change. That's not how to brain work." But I knew Olka had to transform. So Paul decided to start by focusing on just one thing. If I could disrupt a habit around one thing, it would spread through the entire company. Rohit, move on the next slide. Some habits have the power to start a chain reaction, changing other habits as they move through in the organization. Some habits, in the other word, matter more than other in the remaking business and life. These are keystone habits, and they can influence how people work, eat, play, and live, spend, and communicate. Keystone habits start a process that over time transfer everything. Keystone habits say that success does not depend on getting every single thing right, but instead relies on identify a key priority and functioning them into powerful level. The habit that matter the most are the one that win. Next slide, which Rohit, move on the next slide. A small win are the part of how keystone habit create widespread change. Small wins are
a study application of a small advantage. One small win has been accomplished, force and set in the motion that forwards another small win. A small win fuel transmotic change by the labeling 10 advantage into pattern that convince people to bigger achievement are within reach. So next point will be discussed by Krishna Kumar. So Krishna, we can start. Thank you, Bitu. Thank you, Bitu, for giving me this opportunity. A small wins. The small wins do not combine in a neat, linear, serial form, with each step being a demonstrable step closer to some predetermined goal. More common is the circumstance where small wins are scattered like miniature experiments that test implicit theories about resistance and opportunities and uncover both resources and barriers that were. Right, move on next slide. Invisible before the situation was started up. Keystone habits work in weight loss as well. Old way was to try enacting radical change to help obese people lose weight, but it failed. What ended up working? Asking people to keep a food diary once a week. Some people kept daily journals, then started noticing patterns they didn't know existed. From there, they took steps to change the pattern, and that blossomed into even more good habits. Right, next slide. Keystone habits create a small wins, which help other habits flourish by creating new structure. They create culture where change is contagious. Now, Pratyush will continue further. Thank you, Krishna. Mitchell Phelps' Keystone Habits was the videotape, a visualization of every part of a race in his head, which helps keep him calm and focused. Small wins are a study application of a small advantage, Cornell professor in 1984. Next slide, Rohit. O'Neill helps to lower infant mortality rate before going to Alcoa. Mortality, malnutrition of mother, malnutrition before becoming pregnant, lack of biology knowledge, teachers were not trained in biology and nutrition, govt, revamped teacher education. Back, Rohit. Teachers were not trained in biology and nutrition, got revamped teacher education in college to add in biology teaching. In fact, mortality has gone down 68%. Thank you, everyone. Thank you, Bittu and Krishna, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you to all. All right. That's all about the 4 unit. So in this case, first thing what you need to include in your slide was the main hero of Alcoa was Paul O'Neill. You didn't introduce in initial stage. That who mentioned this safety? Was it mentioned in your PPT? Yes, ma'am. Please show the first PPT. Share the screen. In the third slide. Okay. Against traditional policy. Okay, yes. Fine. So here first you need to introduce, elaborate a bit. You were completely reading the sentence.
Okay, what I told earlier also, that first you read one paragraph, then you try to explain in your own words, right? Then next, about Michael Phillip. Who is this Michael Phillip? No introduction was given. Take out that slide, Michael Phillips slide. I think second last one. Who can answer? Who is this Michael Phillip? कौन बता सकता है माइकल फिलिप के बारे में? ठीक है, आपने मेंशन नहीं किया तो आपको एक्सप्लेन तो करना चाहिए था, पीपीटी में मेंशन नहीं हुआ था। अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं वो कंप्लीटली जीरो है इस चैप्टर के मामले में। ठीक है, बाकी लोग क्या स्टोरी को पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हैं ना? तो आपको इस तरीके से बताना होगा कि सबको जीरो नॉलेज है, हम एकदम पॉइंट ए से लेकर के एकदम जो लास्ट पॉइंट है वो हम उसको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा, कोई आंसर देंगे माइकल फिलिप? अभी मैं वेट कर रही हूँ। मैम अमेरिकन स्विमर। ओलंपिक स्विमर थे, ये ओलंपिक में खेल रहे थे। ठीक है, और इसका ये जो स्मॉल विन का क्या मतलब है? एक मैम स्मॉल विन मतलब थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करके एक बड़ा चेंज लाया जा सकता है। जैसे कि सॉरी मैम। जैसे कि मैम पॉल्स ने बताया था कि जैसे फिजिकल डिसऑर्डर जो भी इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लियर नहीं आ रही है। तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करने के लिए, ताकि उनमें केस डेवलप हो सके। क्या क्या फिर से बोलिए? यस मैम। फिर से बोलिए। मैम पॉल का मतलब मोटिव यही था कि सेफ्टी वर्कर। नहीं, आप माइकल फिलिप में जैसे आप स्मॉल विन एक्सप्लेन किए हैं, तो माइकल फिलिप के लिए क्या क्या था स्मॉल विन? लाइक आपके स्टोरी में ये चीज मेंशन्ड है कि सबसे पहले उसका वो फूड चेक करता था, जो हेल्दी फूड है। आप देख रहे होंगे कि एग खाता है, हेल्थ ड्रिंक लेता है। ओके, एंड व्हेन ही वाज एबल टू डू दैट एवरी डे, दैट वाज स्मॉल विन फॉर माइकल फिलिप। ठीक है, जिस दिन वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो उसका है रूटीन में वो खा पाया, तो उसके लिए छोटा विन था। आप देखते होंगे गेम से पहले वार्म अप करता था, तो जिस दिन कर पाए वो उसके लिए स्मॉल स्मॉल विन था। तो उस स्टेज में पहुंचने के लिए एक छोटा छोटा विन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए अपने केस की बात करिए। अब मान लीजिए एग्जाम है, फाइन, पूरा सिलेबस तो हम एक बार में एक रात में कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो आज जो क्लास में हुआ आज आप पढ़ लिए, जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो चीज पढ़ाई हुई वो आप कवर अप कर लिए। दिस इज स्मॉल विन फॉर यू। और ये Yes. एवरी डे अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज अगेन दिस इज लीडिंग टू द गोल डायरेक्शन। जो आपका गोल है उस डायरेक्शन में लीड कर रहा है। Yes, this is what small win is. So I want you to open up, explain a bit other than this what you have written in your slide. It's okay if you read out, but after reading it out, elaborate a bit. समझ पा रहे हैं? जो आप क्या कर रहे हैं, सारे के सारे लोग एक भी पॉइंट जो स्लाइड से बाहर है वो क्या बोले? हाँ, बताइए तीनों। कृष्णा नो मैम। सब के सब वही सारा पॉइंट बोल रहे थे जो पीपीटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है ना? तो ठीक है, अगर आप रीड आउट कर रहे हैं तो रीड आउट करके थोड़ा अपने वर्ड में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर होगा। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन स्किल बेहतर होगा। अभी जितना मैं बताई उतना आप बोल सकते हैं। अभी मैं जितना आप लोग को बताई हूँ उतना आप लोग बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस और नो? जितना कुछ मैं आपको मेंशन की वो आप तभी बता पाएंगे जब आप पूरी स्टोरी को थोरली पढ़ेंगे। यस, स्टोरी आप सोचिए 5 फेज, और ये 5 फेज आप 4 स्लाइड में कवर अप किए हुए, तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ है बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, है कि नहीं? यस मैम। हाँ, बेसिकली अब आप मैम आइए उस स्लाइड में जो आप लास्ट स्लाइड में क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। चैप्टर 4 थोड़ा बड़ा था तो थोड़ा शॉर्टकट में हम लिखते हैं, तो स्लाइड ज्यादा हो रहे थे।
15-20 हो रहे थे। स्लाइड ठीक है, स्लाइड आप कम ही बनाइए, मैं तो पहले से ही बोल रखी हूँ कि स्लाइड आपको ज्यादा नहीं बनाना है, स्लाइड पे फोकस करना भी नहीं है। स्लाइड में सिर्फ आपको पॉइंटर्स लिखना है, आपको एक्सप्लेन करने पे मेहनत करना है। अब देखिए इस स्लाइड की बात करिए, इसमें पोलो नील, ये तो अभी आप एंट्री मारे हैं, सीईओ अल्कोआ कंपनी का, वो सीईओ है पोलो नील। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये पता है कब का है ये? क्या ये अल्कोआ कंपनी का है? ये जब अल्कोआ कंपनी में था तब का है क्या ये? एंड केस स्टडी है 1985 पे। हाँ, 1985 में वो क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था? मैम सीईओ अपॉइंट हुआ था। यही है इसका मतलब, आप स्टोरी नहीं पढ़े, कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़े हैं। वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था उस वक्त, यहाँ पे उस वक्त वो अल्कोआ ज्वाइन भी नहीं किया था। यहाँ आपने खुद लिखा भी है बिफोर गोइंग टू अल्कोआ, राइट? और ये अल्कोआ में ये सीईओ बना है। और ये बेसिकली ये स्टोरी है आपका, जब ये गवर्नमेंट के लिए काम करता था तो वहां पे एक साउथ अफ्रीका, एक प्लेस है साउथ अफ्रीका में, कोई एक प्लेस है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1 साल का बच्चा होता नहीं था कि डेथ होता था। ये सब सारा एक्सप्लेन हुआ। आपको मेन यहाँ पे बताना है, सीधा आप पहुंच गए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी आपने बताया, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था ना, क्या कहाँ कौन से एरिया में बात हो रही है। ठीक है, यू हैवंट मेंशन, मैं बोल भी नहीं रही हूँ मेंशन करने के लिए, बट आप रफली अपने नोटबुक में लिख सकते थे, ताकि जब आप एक्सप्लेन करें तब आप उसको मेंशन करिए। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम, दिस वाज हैपनिंग, दैट इन्फेंट वर dying at very early stage. Okay, they were dying before reaching to 1 year even. So Paul O'Neill was given the responsibility to handle the situation and find out that what was wrong. Okay, to check this death rate. Then what Paul O'Neill did, फिर Paul O'Neill ने क्या किया, तब बाद में उनका रूट काउज निकाला गया कि एक्चुअल में माल न्यूट्रिशन जो मदर का होता है, मतलब मदर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, जो आपका यहाँ स्लाइड में भी मेंशन्ड है कि माल न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिंक निकला कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि खाना कैसे चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड क्या होता है। ठीक है, फिर लिंक निकल के आया कि चलो ठीक है, हाई स्कूल में एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल में सारा चीज बता देना चाहिए उसी वक्त, राइट? अब फिर क्या हो गया, अब बाद में लिंक निकल के आया कि जो टीचर्स हैं वही ज्यादा ट्रेंड नहीं है जो न्यूट्रिशन और बायोलॉजी के बारे में ज्यादा बता पाए। ठीक है, तो फिर निकल के आया कि चलो मेन एक्चुअल रूट काउज क्या है, वहां एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। कहाँ है डेथ रेट और कहाँ है एजुकेशन सिस्टम? तो आपको इस तरीके से लिंक जोड़ना है ना। यस मैम। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो क्या हम बता पाएंगे, क्या हम एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं तो यही होगा, रीड आउट होगा। यस, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो देंगे, हर प्रेजेंटेशन में सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना, क्योंकि मेन मोटिव है सिखाना। पहले प्रेजेंटेशन में जो जो चीज मैं आपको पॉइंट आउट की, इस प्रेजेंटेशन में वो प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, कंप्लीट प्रोफेशनली हैंडल किया आप लोग, जैसे पास कर रहे थे, जैसे प्रेजेंट कर रहे थे, इट वाज कंप्लीटली प्रोफेशनल। ठीक है, वो चीज आप लोग कवर अप कर पाए। ठीक है, उसमें कहीं कोई कंप्लेन नहीं था, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए, प्रोफेशनली प्रेजेंट किए। लेकिन मेरा क्या कहना था, एक पॉइंट को आप छोड़ दिए जो मैंने लास्ट में भी बताया, कहा था सारे ग्रुप मेंबर से कि आप लोग रीड आउट कर रहे हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन अ बिट। तो ये पॉइंटर को थोड़ा ग्रुप जब प्रेजेंट करेंगे, इंश्योर किए हो, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन पार्ट पे यानी हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर स्लाइड, बट आप इंपॉर्टेंट पोर्शन लेकर के फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? जैसे अभी ये स्लाइड के बारे में मैंने बताया ना कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, एट दैट ईयर, जो भी ईयर आप मेंशन किए हैं, उस ईयर में वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, ये साउथ अफ्रीका में इस जगह में ये सिनेरियो था। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करिए। यस, गेटिंग माय पॉइंट? और फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो ये मोर्टेलिटी रेट आपका इतने % से नीचे चला गया। ठीक है, तो इसमें की स्टोन में क्या फोकस किया, तो आप ये बताएंगे ना, की स्टोन हैबिट मतलब क्या, कोई एक चीज पे हम फोकस किए जिसके वजह से बाकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली रिपल अप हो गया। रिपल अप मतलब ऑटोमेटिकली ठीक होता चला गया। ठीक है, और लाइव एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप वेट लूजिंग के बारे में डिस्कशन किए। ठीक है, तो वेट लूजिंग में चलिए सुबह उठ करके हम जॉग पे जाएंगे,
तो ये मेरा एक की स्टोन हैबिट है कि जॉगिंग एवरी डे एट 5, ठीक है, आई विल वेक अप एट 5 एंड आई विल जॉग एवरी डे, ये मेरा की स्टोन हैबिट है। अब बाकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कैसे रिपल अप हो जाएगा, साथ साथ कैसे ठीक होता चला जाएगा। अब घर आएंगे, आपको हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, जो बंदा 5 बजे उठ करके जॉग कर रहा है वो तो ऑटोमेटिकली हेल्थ कॉन्शियस हो गया। घर आके क्या वो अनहेल्दी फूड खाएगा? घर आकर के इतना मेहनत करने के बाद वापस से चिप्स जूस खा करके, जूस तो खैर हेल्दी होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये सब पी करके क्या अपना हेल्थ खराब करेगा? हाँ, नो। ऑब्वियसली नो। तो वही चीज है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरा डाइट भी इम्प्रूव होगा, ठीक है, हम अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे और ये सारा चीज ऑटोमेटिकली चेक हो जाए। यस। तो वेट लूजिंग का क्या आप लिंक है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बाकी इसमें प्लस पॉइंट वही है कि प्रोफेशनलिज्म में कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट किया आप लोग। बट एक्सप्लेनेशन पार्ट अब ये थोड़ा रीडिंग से हट करके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जो कुछ मैं बताई क्या वो स्लाइड में प्रेजेंट है? और जो लोग प्रेजेंट किए क्या आप ये सब बात जान रहे थे? Yes, ma'am, little bit. हाँ, Yes, ma'am, little bit जान रहे थे। तो फिर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम लोग में कोशिश करना, आई विल ट्राई। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है, अदिति, अमृत और आकृति, ठीक है, ये तीन इस चीज पे फोकस करेंगे कि एक्सप्लेन हम ज्यादा करें, क्योंकि बाकी जो ग्रुप में बाकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये स्टोरी नहीं पढ़े हैं। तो उन लोग को फील होना चाहिए कि क्या है इस स्टोरी में, उन लोग को समझ आना चाहिए कि क्या डिस्कशन हो रहा है, मेन मोटिव क्या है, ये जो स्टोरी बताया जा रहा है ये पॉल ओनील के बारे में, माइकल फिलिप के बारे में, तो टेक अवे क्या है, वो टेक अवे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। माइकल फिलिप और ये सब का स्टोरी पढ़ने के लिए तो हम यहाँ आए नहीं है, मैंने ये आपका कोई स्टोरी बुक भी है नहीं। यस, ये हर चीज का मेन मोटिव है, रिसर्च बेस्ड बुक है ना, कोई फिक्शन वगैरह तो है नहीं ना इस बुक में। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है, तो वो कंक्लूजन ही मेन चीज है। और वो जो चीज है वो हमको अपनी हैबिट में इनकलकेट करना है। तो क्या टेक अवे था, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और कंक्लूजन कल आप बिट्टू बोल रहे थे इंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन कोई इंक्लूड नजर नहीं आया आपके पीपीटी में। हाँ, लास्ट में थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को बाहर जाना था तो। खैर तो ये सब चेक करिएगा। और नेक्स्ट ग्रुप आज प्रेजेंट करेंगे या कल प्रेजेंट करें? खैर आज तो टाइम नहीं है, थोड़ा प्रेजेंटेशन कंप्लीट 5 फेजेस है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही आपका अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 45 मिनट्स तो लग ही जाएगा एक्सप्लेन अच्छा करने में। मैम जैसे सत्यम कल मतलब उस दिन प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उस दिन मतलब पढ़ रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप कहीं मैम की एक्सप्लेन वैसे नहीं किया था। मैंने कहा था हिंदी में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। यस मैम। यस, ट्रांसलेशन के लिए मैंने मना किया था। एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओनली। अभी मैंने क्या किया, अभी तो मैं करके दिखाई ना आपको। क्या मैं रीड आउट करके ट्रांसलेट कर रही थी, या वो जस्ट क्या है या टेक अवे क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी? क्या एक्सप्लेन करना है वो भी अगर मैं बता दूं कि आपको ट्रांसलेट रीड आउट करके आपको हिंदी मतलब नहीं समझाना है, आपको उसका टेक अवे बताना है, ठीक है। जैसे माइकल फिलिप इन्होंने लिखा, तो माइकल फिलिप कौन थे वो आप पहले एक्सप्लेन करिए, ठीक है, कैसे वो ओलंपिक विनर बने, ठीक है। आप ये भी मेंशन नहीं किया माइकल फिलिप में सबसे इम्पोर्टेंट वो गेम वाला दिन जो हुआ था, अगर आप स्टोरी पढ़ें तो गेम वाले दिन, ओलंपिक गेम जिस दिन चल रहा था, तो उसका गॉग जो था स्विमिंग का, जो जो गॉग पहन करके वो स्विम करता था वो टूट गया था, सारा पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो विनर बना, है ना। तो क्यों विनर बन पाया? क्योंकि उनके कोच ने ये चीज उसको पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दी थी कि आप अंधेरे टनल वगैरह में कैसे स्विम कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का ट्रेनिंग दिया गया था, वो सब कुछ मेंशन नहीं था।
लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे आगे आने वाले कंसिक्वेंसेस के लिए आप तैयार हो सकते हैं पहले ही। ठीक है, क्या क्या आगे आप पहले से यहाँ पे इससे टेक अवे क्या हो रहा है कि पहले ही हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या खराब हो सकता है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो जाए जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या ट्रेनिंग दिया, कोच ने क्या ट्रेनिंग दिया था, कंप्लीटली विजुअलाइज करने का प्रैक्टिस करवा दिया था। हर दिन वो प्रैक्टिस करता था और उसको वो विजुअलाइज करना होता था कि हाँ आप जीत रहे हैं, ऐसा आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, हर दिन आप अपने जीत को फील करिए। यस, ठीक है, ये सारा चीज स्लाइड में नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, क्या मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ? नो मैम। तो मैंने की टेक अवे यही चीज, अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ट्राई, okay, if you are not that comfortable then you can use both the language, but if try at least in English, try at least. If you are not capable then use mixture of both the language. Okay, but if you really want to learn something then try to be in English. It's okay to make mistake, use wrong English, I will correct you, but it's okay if you are making it on this platform. But once you go out from this PGDM, that on that platform, if you are committing any mistake, then it will be pathetic. It will cost you a lot. ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब समझिए कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। आपको एक कंपनी, अच्छी कंपनी लूज कर सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी इंटर करने से लूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जितना मिस्टेक करना है यहीं पे कर लीजिए। ठीक है, जाके जब हम निकले तो मिस्टेक का चांसेस कम तो जरूर होगा, एकदम खत्म तो आपका जब आप 60-65 के हो जाएंगे तब भी एकदम मिस्टेक नहीं करेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन कम तो जरूर हो जाएगा। यस और नो? नाउ प्लीज रिमूव योर स्लाइड, स्लाइड हटा लीजिए। जो लोग नहीं पढ़े उन लोग को स्टोरी समझ में आई ना? जो लोग नहीं पढ़े ये स्टोरी, कीस्टोन हैबिट क्या चीज है, किस किस बारे में डिस्कशन हुआ, ये सारा चीज समझ में आया? यस मैम। बाकी जिसके पास बुक है रीड करने का तो सजेशन मैं सबको दूंगी, क्योंकि मेन आप उसी से सीखेंगे। एक बार रीड आउट कर लीजिए अगर घर में टाइम बचता है तो, जो आप लोगों के पास बचता है नहीं, है ना? मैम हर एक ग्रुप को दोबारा भी दोबारा भी चांस मिल सकता है प्रेजेंट करने का? अगर हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीखने के पर्पज से, मार्किंग तो इस पे हो रहा है फाइनल, लेकिन आप इसमें अगर आप लोग चाहते हैं खत्म होने के बाद तो कर सकते हैं। आज किसका था? बिट्टू, रोल नंबर आपका? 25 में। प्रोफेशनलिज्म के लिए और बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा होना चाहिए, इसीलिए 8। कृष्णा का रोल नंबर? 19। एंड प्रत्युष आपका नंबर? 17 मैम। में आप लोग इतने परफेक्ट हो जाएंगे, जब एचआर का मेन प्रेजेंटेशन होगा तब आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। एचआरएम का भी प्रेजेंटेशन है मैम हम लोग के लिए? ये अभी नहीं, ये तो सिलेबस खत्म होने के बाद ही कर पाएंगे हम लोग। टुडे इज 14th। मार्क्यू जरूर होगा, हर मंथ जो मार्क्यू होता है एचआरएम का वो तो होगा ही होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, सिलेबस हो जाएगा तब। मैम प्रोजेक्ट वर्क तो कर सकते हैं? जैसे कि मैम जैसे कि किसी चैप्टर का Assignment? प्रोजेक्ट। हाँ 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 बिल्कुल, आपको केस दे दिया जाएगा, वो केस सॉल्व कर सकते हैं आप। खैर जल्दी अटेंडेंस बताइए। रोल 1? प्रेजेंट मैम।
2, 3, 4, 5, 6, 6 present. 7, 8, 9, 9 present, ma'am. Ma'am, 8. okay, 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, 14, 15, 16, 17, Present, ma'am. 17. 18, 19, Yes, ma'am. 20, Yes, ma'am. 20. 21, Present, ma'am. 22, 23, 24, 25, 26, 27, Yes, ma'am. 26. 27, 27, ma'am. excuse me, 28, Yes, ma'am. 29, 30, 31, Yes, ma'am. 30. 31, 32, ऑल राइट। ठीक है, आप लोग में बेस्ट पार्ट है कि ये मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग में कम से कम सीखने का एक जो ललक है वो है। ठीक है, इट विल टेक यू लॉन्ग वे। ये चीज मिसिंग नहीं है तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग बहुत जल्दी सीख लेंगे सारा चीज। और आज तो भास्कर भी आ गया है। Yes, ma'am. हाँ Yes, भास्कर, ma'am. आप ही बोले ना टाइम मैनेजमेंट मैम कर लिए। शाबाश, चलिए गुड, सी यू नेक्स्ट क्लास। पता Thank you, नहीं ma'am. मैम। Thank you, ma'am.